Dear students, in this video we are going to study next type of genetic disorder, thalassemia. Thalassemia is a type of autosomal recessive disorder. This means the gene responsible for this disorder is located on the autosome, the chromosomes other than sex chromosomes, and it is recessive in nature. This means the defective gene is recessive and normal gene is dominating. Now let's study what happens in this thalassemia, what is cause of this disorder, and what are the symptoms that will develop in affected individual. So here I have drawn a diagram of RBC, red blood cell or erythrocyte, and you can see that it is having the red color because of the red colored pigment hemoglobin. Hemoglobin is a complex protein which is having two types of polypeptide chains, two types, alpha and beta chain, alpha type chain and beta type chain, and both these alpha and beta types chain, they are 2 in number. Both are 2 in number, means there are 2 alpha chains and 2 beta chains. So if we are going to total them, we will get 4 chains, 4 polypeptide chains, out of which 2 are alpha and 2 are beta. Here I have also represented these chains. Diagrammatic representation of these chains is like this. 2 alpha chains are shown and here 2 beta chains are shown. Okay. Now the alpha chains are formed by the genes located on chromosome number 16. ये जो polypeptide chains हैं, इनको कोड करने वाली जो भी जीन है वो ऑटोसोम पे तो है, लेकिन कौन से ऑटोसोम पर है? This is located on the autosomal or the chromosome 16, while the gene which is controlling formation of beta chain is located on chromosome number 11. ये आप ध्यान रखिएगा कि अल्फा चेन को बनाने वाली जीन क्रोमोसोम नंबर 16 पर है और बीटा चेन को बनाने वाली जो जीन है या कोड करने वाली जो जीन है वो 11th क्रोमोसोम पर है. Now this thalassemia is a quantitative disorder. This is very important point here. एक quantitative disorder है. This means that in thalassemia alpha and beta chains will be formed. They will be having normal structure. जो भी अल्फा चेन या बीटा चेन यहाँ पर डेवलप होंगी, हीमोग्लोबिन के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं. हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है, जैसे आपसे बात हुई कि ये 2 तरह की चेन से बना है जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स हैं, टोटल 4 चेन्स हैं. लेकिन इसकी फंक्शनिंग के लिए मीन्स इट हैज़ टू कैरी ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, and for formation of oxyhemoglobin it should possess a normal structure. And how this normal structure will be obtained? If it is having the alpha and beta chains normal. अब अल्फा और बीटा चेन्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल होता है इस थैलेसीमिया में. दे आर हैविंग द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस थैलेसीमिया इज दैट देयर इज the number or quantity of this chain that matters. थैलेसीमिया डिसऑर्डर में जैसे आपसे अभी डिस्कस हुआ कि ये 4 चेन्स होने चाहिए. नॉर्मल हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स होती हैं. अगर इन 4 चेन्स में से कोई भी एक चेन मिसिंग है, एक हो सकती है, एक से ज़्यादा भी चेन्स मिसिंग होती हैं, दैट डिसऑर्डर इज थैलेसीमिया. सो व्हाई वी आर कॉलिंग इट क्वांटिटेटिव? क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन की जो चेन्स हैं उनकी क्वांटिटी मैटर करती है, उनका नंबर मैटर करता है कि वो 4 हैं जो कि एक नॉर्मल कंडीशन हुई या वो 4 से कम है. ओके. तो जैसे अभी 2 बीटा चेन्स होने चाहिए और 2 अल्फा चेन होने चाहिए. सो दिस थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा एंड बीटा टाइप्स ऑफ चेन. इनकी क्वांटिटी कितनी है, नंबर कितना है, उस बेसिस पे हम थैलेसीमिया को 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. थैलेसीमिया इज ऑफ अल्फा टाइप एंड इट इज ऑफ बीटा टाइप. नाउ लेट्स स्टडी व्हाट हैपेंस इन अल्फा टाइप ऑफ थैलेसीमिया एंड व्हाट हैपेंस इन बीटा टाइप ऑफ थैलेसीमिया. सो टू इलस्ट्रेट इट वी हैव ए डायग्राम हेयर. अब देखिए हम अल्फा टाइप की थैलेसीमिया डिस्कस कर रहे हैं एंड फॉर दिस आई हैव शोन हेयर द क्रोमोसोम. ये ऑटोसोम्स हैं एंड इन ऑटोसोम्स पर ये कौन सा ऑटोसोम हुआ, क्योंकि अल्फा टाइप स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ऑटोसोम हुआ क्रोमोसोम नंबर
16. दिस इज द क्रोमोसोम नंबर 16. ये पेयर दिखाया गया है, होमोलोगस पेयर ऑफ द क्रोमोसोम 16. And here you can see that, notice that we have shown two different colors. यहाँ पर दो एरियाज को हाईलाइट किया है, लेकिन ये दोनों अलग कलर से रिप्रेजेंट किए गए हैं. This means that this formation of alpha type of chain is controlled by two genes. ऑटोसोम्स पर दो जीन्स होते हैं, बहुत कह सकते हैं कि लिंक्ड जीन है, एक तरीके बहुत पास पास जीन्स होती हैं ये. एंड दीज जीन्स आर 2 in number and one is we can label as HBA1. एक जीन को आप HBA1 कह सकते हैं और दूसरी जीन को आप HBA2 से लेबल कर सकते हैं. दिस इज द नेम गिवन टू these two genes. Okay, this is chromosome number 16 and here we have shown two genes. Both the genes together going to control formation of alpha type of chain of hemoglobin. अब देखिए इस रेड कलर के इस सेगमेंट को, इस जीन को जिसका नाम हमने HBA1 लिखा है, यहाँ पर हमने इसको एनलार्ज किया है. ठीक है, और ऐसे इस ग्रीन कलर की जीन जिसको हमने HBA2 कहा है, इसको यहाँ पर एनलार्ज किया है. ओके, नाउ यू कैन सी दैट HBA1 जीन हैज़ 2 एलील्स. इसके दो फॉर्म्स होते हैं. ये अभी नॉर्मल जीन दिखाई गई है, दोनों ही जीन्स नॉर्मल दिखाई गई हैं, लेकिन इन दोनों जीन्स की दो एलिलिक फॉर्म्स होती हैं. वन एलिलिक फॉर्म इज द नॉर्मल टाइप ऑफ एलील एंड इट इज डोमिनेटिंग, एंड अदर एलिलिक फॉर्म इज रिसेसिव. और दूसरी एलिलिक फॉर्म को हम लेबल कर सकते हैं H, जैसे नॉर्मल को हमने लेबल किया HBA1, तो दूसरे एलील को बिल्कुल ऐसा सा ही कुछ नाम दे देते हैं HBA1 और यहाँ पर हमने डैश लगाया. ठीक है, ये रिसेसिव फॉर्म है. तो अगर ये रिसेसिव फॉर्म है, ये वाली अगर जीन यहाँ पर इन क्रोमोसोम्स पर है, दिस विल नॉट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ अल्फा टाइप. अगर ये जीन है तो अल्फा चेन फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती है. ओके, और ये नॉर्मल जीन हुई. अब देखिए HBA2 जीन, ये ऊपर वाली जो जीन है, इसके भी दो फॉर्म्स हैं. इसके लिए भी हम दो सिंबल्स यूज कर लेते हैं. HBA2 डोमिनेटिंग जीन है, HBA2 डैश रिसेसिव जीन है. ये नॉर्मल है और ये डिफेक्टिव है. ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो तो नॉर्मल एलील्स दिखाई गई हैं HBA1, HBA2, और दो इनके डिफेक्टिव फॉर्म्स भी दिखाई गई हैं HBA1 डैश, HBA2 डैश. तो टोटल यहाँ पर हमारे पास कितनी एलील्स हैं? वी हैव 4 एलील्स. वी हैव 4 एलील्स. जीन्स दो हैं, लेकिन दोनों जीन्स की क्योंकि दो दो फॉर्म्स हैं, इसलिए टोटल हमारे पास 4 एलील्स हैं. तो किसी भी पॉपुलेशन में जो मेंबर्स होते हैं, उनके पास इन 4 एलील्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है. इन एलील्स के कॉम्बिनेशन से ही आइडिया लगेगा कि किसी पर्टिकुलर पर्सन में थैलेसीमिया डेवलप होगा या नहीं होगा. सो यहाँ पर कुछ जीनोटाइप्स दिखाए गए हैं. इन्हीं चारों एलील्स को लेकर कुछ जीनोटाइप्स को मेंशन किया गया है. आप सबसे पहला यहाँ पर जीनोटाइप देखिए, HBA1, HBA2, HBA1, ये दोनों एक जैसी एलील्स हैं. ये होमोजाइगस केस हुआ इस एलील का, इस जीन का, सॉरी, HBA1 जीन का ये होमोजाइगस कंडीशन है. दोनों एलील्स एक जैसी हैं. यहाँ पर HBA2, HBA2, ये दूसरी जीन के यहाँ पर होमोलोगस पेयर दिखाया गया है. तो टोटल एलील्स इन चारों में से, ये टोटल एलील्स आपको कैसे दिखाई दे रही हैं? ऑल एलील्स आर नॉर्मल, दे आर डोमिनेटिंग एंड नॉर्मल. तो टोटल 4 हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल एलील्स हैं. सो अगर टोटल 4 एलील्स हमारे पास नॉर्मल हैं, तो हमारी जो अल्फा चेन्स हैं हीमोग्लोबिन की, वो सभी की सभी नॉर्मल डेवलप होंगी. ओके, अब चलें यहाँ पर ये वाला केस देखें. इन चारों में से ये वाला जो केस है, ये एलील जो है ये डिफेक्टिव दिखाई गई है. जैसे HBA1 ये नॉर्मल है, लेकिन इसकी जो दूसरी एलीलिक फॉर्म है वो एबनॉर्मल है, डिफेक्टिव है. डैश लगा के दिखाया हमने, और बाकी की दोनों एलील्स नॉर्मल है. तो टोटल कितनी एलील्स ऐसी हैं जो नॉर्मल हैं? देयर आर 3 नॉर्मल एलील्स. तो
यहाँ इस पर्सन को प्रॉब्लम, क्योंकि ये डिफेक्टिव जीन है, तो प्रॉब्लम ये आने वाली है कि जो अल्फा चेन का जो नंबर है, क्वांटिटी है, वो कम हो जाएगी। नॉर्मल से क्वांटिटी उसकी चेन्स की कम हो जाती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिंगल एक ही एलील ही यहाँ पर डिफेक्टिव है, इसलिए सच पर्सन इज नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस द सिम्टम्स ऑफ थैलेसीमिया। ये पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, इनमें एनीमिया डेवलप नहीं होती है, कोई इनको थैलेसीमिया जैसी प्रॉब्लम के सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं। दे आर नोन एज द साइलेंट थैलेसीमिक पेशेंट्स। साइलेंट मेंबर्स हैं क्योंकि सिर्फ एक एलील जो रिसेसिव है, 4 में से सिर्फ एक ही डिफेक्टिव इसके पास है। ऐसे सेम केस यहाँ पर है। ये देखिए HbA1 HbA1 ये दोनों नॉर्मल एलील्स हैं। इस सेगमेंट में से इसकी एलील दोनों नॉर्मल हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो ऊपर वाली जो जीन है इसके एक एलील डिफेक्टिव दिखाई गई है, ये डिफेक्टिव है। तो टोटल कितनी आपको यहाँ पर नॉर्मल एलील्स दिखाई दे रही हैं? यहाँ पर आपको 3 एलील्स नॉर्मल दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल सेम केस है। यहाँ पर ये वाली एलील डिफेक्टिव थी, इस नीचे वाली जीन की एलील, और यहाँ पर इस HbA2 की एलील डिफेक्टिव है। केस वही है, यहाँ पर 3 नॉर्मल एलील्स मौजूद हैं, एक आपको डिफेक्टिव दिख रही है। तो ये भी एक तरह से साइलेंट मेंबर्स रहेंगे। थैलेसीमिया है माइनर, बहुत कम इनमें सिम्टम्स होंगे, क्योंकि बाकी की 3 जो हैं वो अल्फा चेन इतने तो बना ही लेते हैं। दे आर गोइंग टू मेक द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अल्फा चेन्स। याद रखिएगा हम यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट केस देखिए, यहाँ पर HbA1 HbA1 डैश HbA2 HbA2 डैश, यानी कि यहाँ पर 2 एलील्स डिफेक्टिव दिखाए गए हैं। एक एलील इस जीन की डिफेक्टिव दिखाई गई है और एक एलील इस जीन की डिफेक्टिव दिखाई गई है। 2 एलील्स डिफेक्टिव हैं। तो हमारे पास नॉर्मल जो एलील्स हैं वो कितनी हुई? 4 में से हमारे पास 2 एलील्स नॉर्मल हैं। तो ऐसे पेशेंट्स, ऐसे थैलेसीमिया वाले जो पर्सन हैं, इनको हम कहते हैं माइनर। इनमें बहुत सीवियर जो हैं सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं। माइनर प्रॉब्लम्स इनको हो सकती है क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा चेन्स आर डिक्रीजिंग हेयर। नॉर्मल क्वांटिटी जितनी होनी थी, जैसे इस केस में, वो अल्फा चेन की जो क्वांटिटी है वो इस केस में कम है। सच केसेस आर नोन एज माइनर। लेकिन क्या हो अगर इन 4 में से 3 डिफेक्टिव हो, जैसे यहाँ पर 3 को डिफेक्टिव दिखाया गया है, तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं इंटरमीडिएट केसेस। ये एग्जिस्ट करते हैं पॉपुलेशन में, एग्जिस्ट साइलेंट भी कर रहे हैं, माइनर भी कर रहे हैं, लेकिन सिम्टम्स बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आते हैं। साइलेंट में तो अपीयर नहीं होते हैं सिम्टम्स, माइनर में सिम्टम्स आते हैं लेकिन बहुत कम दिखते हैं, इनको बहुत कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन इंटरमीडिएट जो हैं मेंबर्स, ये पॉपुलेशन में प्रॉब्लम फेस करते हैं बिकॉज दे हैव 3 डिफेक्टिव एलील्स आउट ऑफ 4। इनमें सिर्फ एक आपको नॉर्मल दिखाई दे रही है और बाकी के सारे आपको डिफेक्टिव नज़र आ रही हैं। तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं इंटरमीडिएट थैलेसीमिक अफेक्टेड पर्सन। और इन सच पर्सन we will diagnose or recognize the symptoms related to this thalassemia। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक केस दिखाया गया है, दिस केस HbA1 डैश HbA1 डैश HbA2 डैश HbA2 डैश। 4 एलील्स हैं और चारों की चारों ही कैसी हैं? एबनॉर्मल हैं, डिफेक्टिव हैं। तो ऐसे पर्सन में कोई भी एलील नॉर्मल नहीं है। तो द प्रॉब्लम फेस्ड बाय सच पर्सन विल बी दैट दे आर नॉट गोइंग टू फॉर्म द अल्फा चेन। इनमें अल्फा चेन्स नहीं बनेंगी, इनमें सिर्फ बीटा चेन्स बनेंगी जिसकी जीन्स दूसरे क्रोमोसोम पर है। तो आप इन सभी जीनोटाइप्स में कंपैरिजन कीजिए। यहाँ नॉर्मल सारे जीन्स नॉर्मल हैं, तो इसीलिए नॉर्मल अल्फा चेन्स या उनका जो नंबर है, अमाउंट है, वो नॉर्मल बन रहा है। लेकिन जैसे जैसे अल्फा चेन्स बनाने वाली जीन्स डिफेक्टिव होती जाती हैं, 4 में से जितने ज़्यादा डिफेक्टिव केस वाली एलील्स जीनोटाइप में आपको दिखाई देंगी, उतनी ही ज़्यादा उस थैलेसीमिया प्रॉब्लम की सीवियरिटी बढ़ती जाएगी।
एक है, एक डिफेक्टिव है 4 में से, तो ये इसमें सिम्टम्स कम दिखते हैं। अगर धीरे धीरे जैसे 1 से 2 चेन डिफेक्टिव 2 एलील्स डिफेक्टिव दिखाई दे रही है, 2 से 3 डिफेक्टिव हो सकती हैं और चारों के चारों भी डिफेक्टिव हो सकती हैं, तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पर्सन कौन रहेगा? जिसमें चारों के चारों ही एलील्स डिफेक्टिव हैं। अल्फा चेन इनमें तो बनेगी नहीं, और 3 वाले में अल्फा चेन का जो नंबर है वो बहुत कम रहेगा। इस केस में क्या होगा? जिसमें चारों ही डिफेक्टिव जीन्स हैं, चारों ही एलील्स डिफेक्टिव हैं, ऐसे पर्सन जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि अल्फा चेन इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, तो दे कांट सर्वाइव इन पॉपुलेशन। लेकिन अगर ये इंटरमीडिएट केस है तो ऐसे पर्सन को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? दे विल सफ़र द प्रॉब्लम ऑफ रिडक्शन इन आरबीसीज। इनकी जो आरबीसीज का जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, इट विल reduce and they will form hemolytic anemia, hemolytic anemia। इनकी आरबीसीज बस्ट हो जाते हैं और उनका नंबर कम हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। एंड ऑल्सो they will face problem of jaundice and their spleen will show enlargement। उनका जो स्प्लीन का साइज है वो एनलार्ज हो जाता है, लीवर की फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस आ जाती है और इनकी आरबीसीज का नंबर कम हो जाता है बिकॉज दे आर नॉट हैविंग नॉर्मल हीमोग्लोबिन इन देम। सो दिस इज द अल्फा टाइप ऑफ थैलीसीमिया, जिसमें हमने स्टडी किया कि जो ये अल्फा टाइप की जो थैलीसीमिया है इसमें अल्फा चेन जो है वो मैटर करती है कि उनका नंबर कितना है, और अल्फा चेन का नंबर कौन डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन में उसमें जो ये टोटल 4 एलील्स हैं, इन चारों एलील्स में से नॉर्मल एलील्स कितनी है। जितनी ज़्यादा नॉर्मल एलील्स होंगी, जैसे चारों की चारों एलील्स ज़्यादा नॉर्मल है तो अल्फा का चेन का नंबर ज़्यादा रहेगा, नॉर्मल रहेगा। लेकिन जैसे जैसे ये नॉर्मल एलील्स रेड्यूस होती जाएंगी, 4 से 3, फिर 2 या फिर 1 या बिल्कुल नहीं, तो नॉर्मल एलील्स का नंबर जैसे जैसे रेड्यूस होता जाएगा अल्फा चेन का नंबर या उनकी जो क्वांटिटी है वो भी रेड्यूस होती जाती है। Okay, this is the alpha type of thalassemia. Now let's study beta type of thalassemia. तो बीटा टाइप के लिए यहाँ पे फिर से एक ऑटोसोम दिखाया गया है और इस पे इस बीटा चेन को बनाने वाली एक ही जीन होती है। अल्फा में हमने पढ़ा था वहाँ पर 2 जीन्स कंट्रोल कर रही थी अल्फा चेन को बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल जीन ही है एंड दिस जीन इज नेम्ड एज HBB। ये HBB नेम की जीन है और ये क्रोमोसोम कौन सा दिखाया गया है? दिस इज द क्रोमोसोम नंबर 11। तो इस HBB जीन को यहाँ पर हमने एनलार्ज करके दिखाया है और इसकी भी 2 फॉर्म्स होती हैं, HBB, HBB डैश। इसको 2 एलील्स हमने यहाँ पर दिखाई हैं, दीज आर द एलील्स ऑफ दिस जीन। दिस मीन्स दैट फॉर्मेशन ऑफ बीटा चेन विल बी कंट्रोल्ड बाय 2 एलील्स। ये 2 एलील्स हैं जो मिलकर बीटा चेन को कंट्रोल करती हैं। अल्फा चेन को कितने एलील्स कंट्रोल कर रही थी? अल्फा चेन फॉर्मेशन वाज कंट्रोल्ड बाय 4 एलील्स। 2 जीन्स थी और उनकी 2 फॉर्म्स थी, तो टोटल 4 एलील्स थी। यहाँ पर जीन तो एक ही है लेकिन उसकी 2 एलील्स हैं, क्लियर है, जिनमें से ये जो नॉर्मल वाली है HBB ये डोमिनेटिंग है और HBB डैश जो है वो डिफेक्टिव जीन जिसको आप कह रहे हो ये एक रिसेसिव है। ओके, नाउ लेट्स मेक देयर कॉम्बिनेशन कि अगर इन दोनों एलील्स के कॉम्बिनेशन किसी इंडिविजुअल में है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है या कैसे वो थैलीसीमिया डेवलप करेंगे। यहाँ पर देखिए एक कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल है, HBB दोनों ही एलील्स नॉर्मल हैं, तो नंबर ऑफ चेन्स विल बी नॉर्मल है। यहाँ पर दोनों एलील्स नॉर्मल हैं। यहाँ देखिए ये केस देखिए, एक केस ऐसा हो सकता है ये हेटेरोजाइगस, इसमें दोनों एलील्स में से एक एलील नॉर्मल दिखाई गई है, ये नॉर्मल हुई और ये है एबनॉर्मल केस, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल एलील है तो बीटा चेन बने तो होगी, बीटा चेन इसलिए बनेंगी क्योंकि एक डोमिनेटिंग एलील है। इस जीन की वजह से, इस एलील की वजह से बीटा चेन डेवलप होंगी, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम रह जाएगी। क्वांटिटी कम इसलिए रह रही है क्योंकि इसके साथ ये दूसरी एबनॉर्मल रिसेसिव जीन है, तो क्वांटिटी ऑफ बीटा चेन विल बी रिड्यूस्ड इन दिस केस। और ऐसे मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं और
एक केस ये भी हो सकता है कि दोनों ही एलील्स एबनॉर्मल हों, तो ये वाले जो इंडिविजुअल्स हैं ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दे विल डाई, डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये वाला अगर केस है ये जीन ही डिफेक्टिव है, दोनों ही क्रोमोसोम्स पर जीन डिफेक्टिव है, एलील्स डिफेक्टिव है, तो बीटा चेन्स बिल्कुल नहीं बनेगी, सिर्फ अल्फा चेन डेवलप होंगी, और बीटा चेन ना बनने से हीमोग्लोबिन नॉर्मल स्ट्रक्चर उसका डेवलप नहीं होता है और ऐसे पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये वाला जो केस है ना हेट्रोजाइगस वाला, ये सर्वाइव कर सकते हैं। इंटरमीडिएट मेंबर्स आप इनको बोलेंगे, दे विल डेवलप सिम्टम्स लाइक रिडक्शन इन नंबर ऑफ आरबीसीज, जॉन्डिस और एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन एरिया, ओके, लीवर डिसफंक्शंस, ऐसी प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी पड़ेंगी। एंड दे कैन बी गिवन ट्रीटमेंट, अगर उन्हें सर्वाइव करना है तो उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रीटमेंट दी जाती है, चाहे अल्फा टाइप की थैलेसीमिया है चाहे बीटा टाइप की। अगर ऐसे इंडिविजुअल्स में नॉर्मल आरबीसीज नहीं बन पा रही हैं क्योंकि उनके पास जो जीन है वो डिफेक्टिव है, तो उनका ब्लड चेंज किया जाता है, एक नॉर्मल ब्लड उनके अंदर ट्रांसफ्यूज करवा दिया जाता है, या बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन भी इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन ये हेट्रोजाइगस केस एग्जिस्ट कर सकते हैं, और अगर ये होमोजाइगस रिसेसिव केस है तो बीटा चेन्स नहीं बनेंगी और ये पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, सो दिस वाज द थैलीसीमिया विच इज़ ए जेनेटिक डिसऑर्डर, एंड व्हाट वी हैव लर्न, इट इज़ ए क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। ये बहुत ज़रूरी फैक्ट है, क्वांटिटेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अल्फा या बीटा चेन की क्वांटिटी मैटर करती है, ना कि उनका स्ट्रक्चर, उनकी क्वालिटी मैटर नहीं करती। यहाँ पर एक एग्जांपल आपने सिकल सेल एनीमिया का लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस किया था आपके साथ, उसको आप रेफर कर सकते हो। सिकल सेल एनीमिया में आपने देखा था कि बीटा चेन नॉर्मल नहीं बन पाती, जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है वो नॉर्मल नहीं होती है, तो वहाँ पर अल्फा और बीटा चेन की क्वांटिटी की बात नहीं हो रही थी, वहाँ पर चारों पॉलीपेप्टाइड सेल्स चेन्स बनती हैं, लेकिन उसमें जो बीटा चेन है उसका स्ट्रक्चर डिफेक्टिव होता है। सो सिकल सेल एनीमिया इज ए डिफेक्टिव डिसऑर्डर विच इज ए टाइप ऑफ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। क्वालिटेटिव है, वहाँ पर क्वालिटी मैटर करती है कि चेन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, लेकिन ये जो डिसऑर्डर है थैलीसीमिया इज ए क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। ओके, सो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू।